everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Welcome to this BrahMos Improvement Exam Revision Series. Today we are starting with our coordination chemistry. In the last class, we completed our organic chemistry. We did biomolecules in the last class. We started in this class and ended the chapter in the same class itself. Today we are starting with our inorganic chemistry, our coordination chemistry part. Many of you were requesting for this portion, so today we will do our coordination chemistry. Okay, rules वही same है, 10-15 minutes theory and then we will move to the question answer part. If you want to study the theory in detail, then you can watch the one short theory lectures. I will pin those lectures in the I button, or I will add the link of the playlist in the description box. Okay, if you have any problem with Hindi, then you can opt for the English version of this lecture by changing the language from the settings. Okay, let us start. But before starting, if you are new to this channel, then please do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get the update of the lecture 30 minutes prior to the time. And for the PDF on all information, you can join the Telegram channel as well as the WhatsApp channel. Here you get all the updates, the PDF of the session, and all the information regarding the lectures you get here only. So, starting with our coordination chemistry, first of all, let us understand what are double salts. So, basically, double salts are the addition compounds which are stable in the solid state, but they decompose on going to the what? In the solvent, in the aqueous state or in any solvent, they decompose or they dissociate while going to the aqueous state. They are what? Double salts. For example, we have potassium, pitcairn. We have more salt. All these are double salts. Means whenever these compounds are subjected to water, then they dissociate in the water to form their corresponding ions. Next is complex ions. What are complex ions? So these are electrically charged particles which carry some charge. The charge can be positive or negative. And when these ions are, when the counterpart of these ions is present, then they are known as coordination compounds. For example, we are having any complex ion, suppose CO, NH3, whole 4, 2 positive. We have this part, this cationic part of a coordination compound, and if we add an anionic part here, जब हम यहाँ पर एक anionic part add कर देंगे, then it will become a coordination compound. Okay, तो इसमें कोई ना कोई पार्ट जो होगा, be it anionic और cationic, ये आपका coordination complex ion होगा basically. ये cationic part भी हो सकता है, it can be anionic part also, and it both cationic and anionic can be complex also. या तो दोनों में से कोई एक आपका कॉम्प्लेक्स होगा या फिर आपके दोनों भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकते हैं, ये बात आपको जानने की होती है. ठीक है, जैसे कि आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर दे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूं, CO NH3 whole 6 and I add the anionic part here as Cl3. ये क्या है? ये आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, आयन नहीं रहा, ये कंपाउंड बन गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एनायनिक पोर्शन आ गया Cl3. अगर हम Cl3 को हटाना चाहते हैं तो हम इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव लिख देंगे. ठीक है, समझ में आई? अच्छा, अब इसके बाद कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं इससे. ये होता है सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? जिसके जो बाउंड होता है डायरेक्टली अलग अलग एंटिटीज से, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम. या फिर मैं कह सकता हूँ वो एटम जिससे कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स बाउंड हो, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम. और जो बाउंड होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स, उन्हें कहते हैं लिगेंड्स. कुछ लोग लिगेंड्स कहते हैं, कुछ लोग लिगेंड्स कहते हैं, मैं लिगेंड्स कहता हूँ. तो वो होते हैं आपके लिगेंड्स. ठीक है, और ये फिक्स्ड नंबर
जिसमें ये बाउंड होते हैं, जैसे ये 6 है, जो फिक्स नंबर जिसमें ये बाउंड होते हैं वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो पूरा एंटिटी है पूरी कॉम्प्लेक्स आयन की, इसे कहते हैं, जो जिस ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड जो स्पीशीज बाहर होती है ये जाके आयनाइज होगी पानी में। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, जब भी कोऑर्डिनेशन स्पीशीज डिसोसिएट होगी तो ये CO अलग, NH3 अलग और Cl अलग ऐसे ऐसे नहीं होंगे। ये पूरी स्पीशीज एक साथ इकट्ठी रहती है, ये पूरा एक साथ रहेगा इकट्ठा, ठीक है। ये पूरा एज अ कॉम्प्लेक्स जाएगा एंड ये पार्ट अलग जाएगा। तो ये पार्ट जो आयनाइज होगा इसे ये होगा आयनाइजेशन स्फीयर, और जो पार्ट कॉम्प्लेक्स में रहेगा उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स कैन बी यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। यूनिडेंटेड मींस जिसमें एक ही डोनेशन साइट हो, जैसे अमोनिया यहाँ पर लिखा हुआ है NH3, यहाँ पर सोडियम पर आपका नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, दैट मींस इस पर एक ही डोनर साइट है, इसका मतलब है ये यूनिडेंटेड है। बाइडेंटेड में आ गया जैसे कि आपका ये ये आपका हो गया किसमें? ये हो गया बाइडेंटेट में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दो जगह नाइट्रोजन है तो इसके पास दो डोनर साइट है, दो डोनर एटम है, ये हो गया बाइडेंटेट। और बाइडेंटेट से आगे जितने भी होंगे वो होंगे हमारे पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट में आपके जैसे हो गया EDTA, ठीक है, EDTA यानी इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये हो गया। ये सब ओके हो गए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में, जिसमें दो से ज्यादा एटम्स। नेक्स्ट होता है लिगेंड्स में एम्बिडेंटेट और किलेटिंग लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट होते हैं जिसमें एक लिगेंड के पास दो डोनर साइट्स होती हैं अलग अलग, या जैसे कि CN है, आपने पढ़ा होगा CN के बारे में। एक तरफ ये जो है वो साइनाइड बना देता है, एक तरफ ऑर्गेनिक में आइसोसाइनाइड दे देता है। क्यों? क्योंकि ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड भी होता है। यहाँ पे कार्बन साइड से भी डोनेशन हो सकता है, नाइट्रोजन साइड से भी डोनेशन हो सकता है। कार्बन साइड से होगा तो ये साइनाइड दे देगा, नाइट्रोजन साइड से हुआ तो ये आइसोसाइनाइड दे देगा। यानी जिसके पास दो अलग अलग डोनर एटम्स हों एक ही लिगेंड के अंदर, वो होता है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली आपका NO2 एंड ONO, एक नाइट्रो है एक नाइट्रोसो है, इसमें ये N से भी डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, O से भी डोनेट कर सकता है, तो ये होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड। लास्ट आता है केलेटिंग लिगेंड। केलेटिंग लिगेंड होते हैं वो लिगेंड जो कि केलेट यानी रिंग टाइप कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, वो होते हैं केलेटिंग लिगेंड। जब अच्छा, अब केलेटिंग में मोनो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मोनो के लिए मोनो तो बना ही नहीं सकता, कि रिंग कैसे बनाएगा, अकेला इंसान रिंग कैसे बनाएगा? तो केलेटिंग के लिए या तो बाय हो या तो पॉलीडेंटेट हो, वो ही रिंग बना सकते हैं केलेटिंग लिगेंड बन के। तो जब लिगेंड जो होता है अपने दो से या दो इससे ज्यादा डोनर एटम्स यूज करता है एक रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसे कहते हैं केलेटिंग लिगेंड, ठीक है, समझ में आया। और ये जो केलेटिंग लिगेंड होते हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। केलेटिंग लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि केलेशन करने से एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है और प्रोसेस जो होता है फेवरेबल हो जाता है, ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक स्पीशीज पे। होमोलेप्टिक होती है जहां पे आपका एक ही टाइप का डोनर ग्रुप हो, जैसे कि ये है, ये होमोलेप्टिक है क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमोनिया है। हेटेरोलेप्टिक कहाँ होगी? जहां अलग अलग टाइप के डोनर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपका मैं लिख दूं यहाँ पे CO NH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव। ये क्या है? ये आपकी हेटेरोलेप्टिक है क्योंकि यहाँ क्लोरीन भी है और यहाँ पे आपका अमोनिया भी है, तो ये हो गई आपकी हेटेरोलेप्टिक स्पीशीज। क्या हो गई? हेटेरोलेप्टिक स्पीशीज हो गई, ठीक है, ओके। अब एक दो नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर हम अपने आइसोमेरिज्म पे मूव करेंगे। नॉमेनक्लेचर में मैं आपको एक दो नॉमेनक्लेचर बता देता हूं, है ना। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में जो आता है वो है आपका, सपोज करो जैसे कि आपका इस तरह से दे रखा है, एक बढ़िया वाला करा देता हूँ, COCl2 En ट्वाइस और Cl। क्या है ये? अब देखो सबसे पहले इसका रूल होता है कि हम पहले कैटायनिक पार्ट को नेम करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एनायनिक पार्ट।
So cationic part is a complex. So first of all, we will write the name of the cationic species in alphabetical order. So we have here chlorido, and what is this? Ethylene diamine. So for such type of complexes, we don't use simple nomenclature like di, tri, tetra. We use complex nomenclature like bis. For di, instead of di, we will use bis. For tri, we will use tris. For tetra, we will use tetrakis. Okay. So first of all, we will write the for chlorine, we have chlorido, and it is 2. So we will write dichlorido. Dichlorido. अब हम मूव करेंगे इथिलीन डायमीन पर. इथिलीन डायमीन स्टार्ट्स विद ई एंड क्लोराइडो स्टार्ट्स विद सी. तो पहले क्लोराइडो लिख लिया. डाई और ट्राई से मतलब नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ये 2 है, तो 2 के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे बिस. एंड देन वी विल राइट बिस के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, एंड ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इथिलीन डायमीन को लिखते हैं इथेन डैश 1,2 डायमीन, सिंगल एम आएगा. ठीक है. एंड देन वी विल राइट द सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट. अब कोबाल्ट के बाद आएगी इसकी क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे आपका Cl2 है, यहाँ पर आपका Cl है. इथिलीन का जो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन En का 0 होता है. Cl का कितना होता है? Cl -1 होता है. तो ऐसे अगर CO को X माने तो X -2, एंड देन उसके बाद ये वाला पार्ट Cl, इसका भी -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 होगा. X की वैल्यू हो गई +3, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3. तो कोबाल्ट 3, एंड देन एनायनिक पार्ट क्लोरीन है तो क्लोराइड. ये हो जाएगा इसका नाम. और कोबाल्ट 3 और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा. ठीक है. इस तरह से नाम हो जाता है. अब मैं आपको एक नाम और सिखा देता हूं, उसके बाद हम एंड करेंगे इस चीज को. अगर सपोज करो दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो कैसे नाम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैटायनिक पार्ट डायमीन, यहाँ डबल एम आता है. ठीक है, ये याद रखना. अगर हम लिगेंड को नाम करते हैं तो उसमें डबल एम आता है. देन सिल्वर. सिल्वर किसमें है? अमीन आपका किसमें होता है? अमोनिया का क्या होता है चार्ज? कुछ भी नहीं होता चार्ज. तो हम चार्ज किससे डिटरमाइन करेंगे? चार्ज डिटरमाइन होगा इस वाली चीज से. तो ये वाली स्पीशीज कैसी है? अगर ये यहाँ पे अगर ये यूनि नेगेटिव है ना, इसमें -1 चार्ज ही होगा, तभी यहाँ पे कुछ नहीं आया है. अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता तो यहाँ नीचे वो चार्ज आ जाता ना. तो यूनि नेगेटिव है, यानी इसमें डायमीन सिल्वर 1. अब इस वाले पार्ट को नेम करेंगे. इस वाले पार्ट में डायसाइनो. इस वाले पार्ट में हम सेंट्रल मेटल में 8 लगा देते हैं. जैसे ये आपका Ag है तो इसे क्या करते हैं? अर्जेंटम कहते हैं ना. तो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और आपका ये भी 1 है तो अर्जेंटेट 1. डायसाइनो अर्जेंटेट 1. इस तरीके से इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो. अब आता है आपका आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म में 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो. स्ट्रक्चर में होता है आपका लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट. स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल. ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं ये हम लोग. तो सबसे पहला आता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां पे आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं. ये कौन दिखाता है? एम्बिडेंटेड जहां लिगेंड्स होते हैं वो दिखाता है लिंकेज. इसका मतलब है इसकी लिंकिंग साइट अलग है. मतलब सपोज करो एक तरफ NO2 जोड़ रहा होगा और एक तरफ आपका ONO जोड़ रहा हो एज अ लिगेंड, तो ये हो गया आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां लिंकेज ही अलग है. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्पीशीज अलग अलग हो जाती हैं. सपोज करो यहाँ पे आपका क्रोमियम है सेंट्रल मेटल एटम, और यहाँ पर आपका कोबाल्ट है. तो दूसरा आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोबाल्ट आ जाए, यहाँ पे क्रोमियम आ जाए. तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है. नेक्स्ट है आयनाइजेशन, जहां पर आयनाइजेशन के लिए जो स्पीशीज आ रही है वो अलग है. सपोज करो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर लिखा है ब्रोमीन, और अगले स्टेप और दूसरे आइसोमर में यहाँ पर लिख रहा है SO4. तो क्या है ये एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है. एक तरफ ब्रोमीन है बाहर,
एक तरफ SO4 है। तो इसका मतलब ये भी है कि जब ये टेस्ट देगा तो ये वाली स्पीशीज ब्रोमीन का टेस्ट देगी और ये वाली SO4 का टेस्ट देगी। इस तरीके से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इस पर हजारों क्वेश्चन बने हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं। लास्ट है सॉल्वेट। सॉल्वेट का मतलब है ये डिफर करेगा कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इससे बाउंड है, ठीक है, और कितने फ्री हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि सपोज करो एक स्पीशीज है जहां पे आपके अंदर जो है वो 6 बाउंड है H2O, और एक स्पीशीज है जिसमें आपका 5 अंदर बाउंड है और एक बाहर घूम रहा है H2O। तो ये होता है सॉल्वेट आइसोमरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। स्टीरियो में आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ये आपका हेट्रोलेप्टिक में ही हो सकता है। क्यों? अगर होमोलेप्टिक होंगे तो वो आइसोमर कैसे एक जैसे ही नहीं हो जाएंगे, इसलिए ये हेट्रो में होता है और अरेंजमेंट के बेसिस पर होता है। आप अरेंजमेंट आपकी 4 में भी हो सकती है और 6 में भी हो सकती है। 4 में 2 स्पीशीज होती हैं, एक होती है टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। जबकि आपकी 6 में क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और क्या होती है 6 में? 6 में और क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। और क्या होती है? और बताओ, और क्या होगी? और भी एक होती है लेकिन हमें उसे पढ़ना नहीं है, ठीक है, उसे पढ़ना नहीं है। ओके, चलो। इसमें टेट्राहेड्रल वाली नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि टेट्राहेड्रल में इस तरीके से सब एक जैसे होते हैं, तो सबकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से सेम होती है टेट्राहेड्रल के अंदर, इसलिए टेट्राहेड्रल जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। स्क्वायर प्लेनर के आइसोमेरिज्म होते हैं 4 में हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के अलग होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन 4 वाले में पहला आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका Ma2X2 टाइप स्पीशीज। अगर A2 मतलब 2 एक जैसे और 2 एक जैसे हों, तो अगर वो 2 एक जैसे साथ में हैं तो ये हो गया सिस, और अगर ऑपोजिट हैं तो ये हो जाता है ट्रांस आइसोमर, ठीक है। एग्जांपल देख लेना, PTPY2Cl2, PY मतलब pyridine, 2Cl2, इस टाइप की स्पीशीज हो। A2XY हो सकती है, यानी A2 2 एक जैसे हो और 2 अलग अलग हो, जैसे 2 अमोनिया एक जैसे हो गए और 2 अलग अलग हो गए। अब वो जो 2 एक जैसे उन्हें देखो, 2 एक जैसे सेम साइड पे हैं तो सिस, 2 एक जैसे जो थे वो अलग अलग हो गए तो ट्रांस हो गया। ABXY चारों ही अलग हो जाएं तो क्या होगा? अगर चारों अलग हो गए तो क्या होगा? चारों अलग हो गए तो या तो देखो, तो हम इसे साइकिल की तरह घुमा देते हैं, एक को फिक्स करके बाकी घुमा दो। जैसे पिरिडीन फिक्स कर लिया यहाँ पे, बाकी घुमा दो, इसे यहाँ ले आए, इसे यहाँ ले आए और इसे यहाँ ले आए, ऐसे घुमाते जाओ। एक जगह पे एक ले, हर जगह पर हर एक लेते जाओ। जैसे देखो अब अमोनिया है, यहाँ पे इन्होंने क्या फिक्स करा हुआ है, यहाँ इन्होंने अमोनिया फिक्स किया हुआ है। अमोनिया फिक्स किया और बाकियों को घुमा दिया। देखो NO2 है, अमोनिया है, NH2OH है, देखो हर चीज घुमा दी। NH2OH यहाँ चला गया, NO2 ये रहा, PY ये रहा। अगले में क्या होगा? इस तरीके से हम घुमा सकते हैं बेसिकली। देखो एक तरफ pyridine यहाँ आ गया, एक तरफ pyridine यहाँ आ गया और एक तरफ pyridine यहाँ है, इस तरीके से घुमा सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है AB2, यानी AB टाइप की स्पीशीज हो, यानी ग्लाइ, यानी आपके ग्लाइसिन है, ये है आपका। तो अगर इस टाइप की स्पीशीज हो तो क्या हो जाएगी, एक इस तरफ से बाउंड है, एक तरफ से बाउंड हो। अगर दोनों एक साइड है तो क्या हो गया सिस, और 2 अलग अलग साइड हो गई तो क्या हो गया ट्रांस। देखो OO साथ में है तो सिस और O ऑपोजिट में चले गए तो ट्रांस हो गया, ठीक है। इसे ऐसे दिखाते हैं, जब भी आप लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से गिला, ठीक है। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल पे। ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करी जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो Ma6 तो दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारे 6 के साथ सेम हो जाएंगे, इसलिए वो तो दिखाएगा नहीं। उसके बाद A5X भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी सब सेम हो जाएंगे, इसलिए। तो सबसे मिनिमम होता है इसमें A4 और X2। A4 X2 में क्या हो सकता है, NH3 दोनों सेम, इनसे मतलब नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं एक्सियल वाले और इक्वेटोरियल वाले। तो ये देखो, ये दोनों अगर जो है ये वाले जो है अलग अलग हैं तो ये सिस, और ये दोनों अगर ऐसे हो गए तो ये हो गया ट्रांस। अब यहाँ सिस और ट्रांस कैसे देखे गए? यहाँ सिस और ट्रांस देखे गए हैं किस बेसिस पे बताओ? ये सिस और ट्रांस देखे गए हैं एस एस, यहाँ देखे जाते हैं इसमें सिस और ट्रांस। ये दोनों अगर साथ में है तो सिस, और ये दोनों अगर ऑपोजिट चले गए तो ट्रांस,
ठीक है। नेक्स्ट देखो E3X3 हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल और मेरिडोनल, ये तीन एक जैसे हो गए तो सिस, और ये तीन अगर अलग अलग हो गए तो ट्रांस। ए ट्वाइस X2 हो सकता है, तो इसमें भी देखो ये अगर ClCl साथ में है तो सिस, और ClCl ऑपोजिट हो गए तो ट्रांस। ठीक है। नेक्स्ट देखो ए थ्राइस में देखो, ये यहाँ बाउंड है और ये यहाँ बाउंड हो रहा है, तो ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो और इसका मिरर इमेज हो गई लीवो। A8 वाइज X2 में देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये अगर इस तरीके से है तो ये हो गया डेक्स्ट्रो और इसकी मिरर इमेज हो गई लीवो। ठीक है, इस तरीके से आइसोमेरिज्म हो जाता है इसके अंदर। ओके, ये कौन सा टाइप के आइसोमेरिज्म है, ये है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि लाइट के रोटेशन पर डिपेंड करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाले जो होते हैं ना, वही है ये आपके स्टीरियो नहीं है, ये आपके ऑप्टिकल है। ठीक है, कैसे हैं, ऑप्टिकल है। तो MMA थ्राइस ये हो गया आपका, और ये सब कैरल मॉलिक्यूल्स दे देंगे, जो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं वो एनेंशियोमर्स हो गए। ठीक है, जो लेफ्ट में घुमाए वो लीवो, जो राइट में घुमाए वो डेक्स्ट्रो। ओके, एक और है इसमें टाइप, ये AA X2Y2। तो देखो इसमें मिरर इमेज, वही है मिरर इमेज का खेल है। अगर इस तरीके मिरर इमेज हो गई, मिरर के ऑपोजिट साइड देख लिया, डेक्स्ट्रो और लीवो। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप। आगे मूव करते हैं वर्नर की थ्योरी पे। तो पहली बात करते हैं वर्नर की थ्योरी। तो अल्फ्रेड वर्नर ने जो थी अपनी थ्योरी दी थी, इसके पोस्टुलेट ये थे कि कंपाउंड जो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है नॉन आयनाइजेबल होती है। ये बात याद रखना, प्राइमरी आयनाइजेबल होती है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी को समझ के रखना, प्राइमरी वैलेंसी होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात याद रखना, बस इतनी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है प्राइमरी वैलेंसी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समझ में आए। और आयंस जो होते हैं जो सेकेंडरी लिंकेज से लिंक्ड होते हैं, उनकी अलग अलग अरेंजमेंट होती है डिपेंडिंग ऑन दी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस इतना बात याद रखनी है। इसमें पॉइंटर्स क्या है, मेन प्राइमरी वाली आयनाइजेबल और सेकेंडरी वाली नॉन आयनाइजेबल। पहला पॉइंट ये, सेकंड प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इतनी बात याद रख। नेक्स्ट बात आती है VBT की। तो VBT क्या कहती है, VBT कहती है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्ड होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कितने वैकेंट ऑर्बिटल है। अब वैकेंट ऑर्बिटल के बेसिस पर अगर अंदर के खाली हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, अगर बाहर के खाली हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपका DsP2 इस टाइप की हो सकती है ना, DsP2 DsP3 इस टाइप का हो सकता है, सॉरी DsP3 नहीं D2sp3। और आपकी बाहर की होगी तो sp3 sp3d sp2d इस टाइप की हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं आउटर ऑर्बिटल में, sp3 sp3d sp3d2, कैसी कैसी हो गई, ये होगी आपकी टेट्राहेड्रल। dsp2 कैसी होती है, ये होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। sp3 होगी ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, और d2sp3 कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। एंड देन sp3d2 ये भी हो गई ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये मैं आपको ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप नहीं, ये याद रखना। ओके, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओवरलैप कर लेते हैं लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स के साथ और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बन सकते हैं, एक तो हो सकता है आपका लो स्पिन और एक हो सकता है हाई स्पिन। ये हो गया आपका हाई स्पिन और ये हो गया लो स्पिन। ठीक है, अगर हाई स्पिन वाले हुए तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे और लो स्पिन वाले हुए तो ये डायामैग्नेटिक होंगे। ये आपकी आपकी बीबीटी कह देती है। लिमिटेशंस भी हैं कुछ बीबीटी की। क्या लिमिटेशन है बीबीटी की, सबसे पहली बात तो इसमें बहुत सारे असम्पशन लेके चलती है, ये इंटरप्रिटेशन नहीं देती मैग्नेटिक डेटा का ढंग से। ये वीक और स्ट्रॉन्ग भी लेगेंड्स को बताती नहीं है, ये आपका कलर नहीं बताती है। ये सब बीबीटी के जो है वो थे डिसएडवांटेज। इसने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इसने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाई, इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए आई CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
क्रिस्टल फील्ड थियरी में जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देन आपके मैग्नेटिक डेटा के लिए इसके बाद मैग्नेटिक डेटा निकालने का डेटा आपका फॉर्मूला है √n+2 वाला। देन उसके बाद इसके अंदर कलर के लिए कलर थ्योरी है डी ट्रांजिशन वाली। इसके अंदर जो काइनेटिक स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी का फैक्टर है इसके अंदर बीटा वाला। ठीक है, ये सब इससे क्रिस्टल फील्ड से ओवरकम करी। ये बात याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड जो होती है वो लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस मानती है। ठीक है, लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज मानती है क्रिस्टल फील्ड। ओके, और कहती है कि जो 5 डी ऑर्बिटल हैं ये आपके डीजेनरेट हैं। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल पर हैं, और जब ये हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो इनके बीच में स्प्लिटिंग हो जाती है। ये स्प्लिटिंग की वजह से जो है वो क्रिस्टल फील्ड में नेचर डिपेंड करता है। अब ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में स्प्लिटिंग अलग होती है और आपकी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में स्प्लिटिंग अलग होती है। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में आपकी 5 में स्प्लिटिंग हो जाती है। आपके डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट होगा तो 3 और 2 में बढ़ जाते हैं ऊपर जाके। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं एनर्जी देने में। ये डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी पर है, और ये बढ़ जाते हैं T2G और EG में। ठीक है, T2G और EG में बढ़ जाते हैं ये इस तरीके से। और जो ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल होते हैं वो आपके ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं वो ऊपर जाके? तो वो बढ़ते हैं इस तरीके से, यहाँ 2 और ऊपर 3। ये होता है आपका E2 और T2, इसमें बढ़ते हैं। इसमें G नहीं होता, जेराइड और उनजेराइड का इसमें केस नहीं है। ऊपर 3 और नीचे 2, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल का। बीच में होता है आपका बेरी सेंटर, और आपकी स्प्लिटिंग होती है वो मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से होती है। ये आपकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की, देखो ये आपके सारे डिजेनरेट वाले हैं। ऊपर गए एनर्जी मिलने पे, उसके बाद यहाँ बीच में बेरी सेंटर हो गया, डेल नॉट आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, CFSC जिसे कहते हैं हम लोग। ये किस तरह से बढ़ते हैं? 2 ऊपर EG वाले और T2G वाले 3 नीचे। नीचे 3 है तो इसकी जो स्प्लिटिंग में है वो आ जाएगा 2/5 डेल नॉट, और ऊपर वाले में आ जाता है 3/5 डेल नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये 2/5 डेल नॉट नीचे है न्यूट्रल से, और ये किसका मतलब क्या है? ये 3/5 डेल नॉट ऊपर है न्यूट्रल से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया। ओके, कुछ लोग इसमें नेगेटिव एरर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। टेट्राहेड्रल वाले हैं तो टेट्राहेड्रल वाले में क्या हो गया? नीचे आपका ये EG गलत है, EG नहीं आता इसमें। इसमें आपका T2 और E रहता है, इसमें आपका G नहीं आता। ये गलत लिखा हुआ है इसमें आपका T2 और यहाँ मैंने गलती लिखी, E2 नहीं होता, T2 और E होता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, नीचे वाले 3/5 और ऊपर वाला 2/5। कुछ लोग इसे नीचे की वजह से, नेगेटिव की वजह से इसे नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो आपका अंडरस्टूड है। और इसमें आता है डेल टी, और इसका रिलेशन होता है डेल नॉट के साथ। ठीक है, डेल टी जो होता है वो 4/9 डेल नॉट होता है, यानी डेल टी जो है वो डेल नॉट से कम है, तो मतलब तो ये है। अच्छा, और एक आती है पेयरिंग एनर्जी। एक कॉन्सेप्ट आता है पेयरिंग एनर्जी का। पेयरिंग एनर्जी क्या कहती है? पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है इन्हें पेयर करने के लिए। अब ये लिगेंड्स की स्प्लिटिंग है। अब जो कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये सीरीज इस तरीके से होती है, आयोडीन, ब्रोमीन, देन आपका F नेगेटिव, है ना, एंड देन आपका इसके अंदर OH नेगेटिव होता है, एंड देन ये आगे चलती जाती है सीरीज। ये आपको सीरीज अपनी किताब में दिख जाएगी। H2O आता है इसके अंदर, देन आपका अमोनिया, आपका इसके अंदर अमोनिया के बाद EN, साइनाइड, और ये जाके खत्म हो जाती है आपका CO पर। इस तरीके से होती है, मैंने पूरी सीरीज नहीं लिखी पर इस तरीके से सीरीज होती है। जो जितना आगे होगा इस सीरीज में वो उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जो पीछे वाले हैं ये वीक फील्ड है। ठीक है, आप उसके बाद बात आती है कि अगर आपकी डेल नॉट जो है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो स्पीशीज पेयर नहीं होगी। तो जब आपको बांटने होंगे तो 1 2 3 और ऊपर वाले में चले जाएंगे, बाकी के 4 5 इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपकी डेल नॉट अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है तो हम इसका मतलब है पेयर हो जाएंगे। तो यानी जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब 1 2 3 और 4 और 5 भरने होंगे ना, तो नीचे भी 4 और 5 भर जाएंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। पेयरिंग हो जाती है अगर डेल नॉट जो होता है वो ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। कलर भी इसी वजह से आता है, डी ट्रांसिशन की वजह से। डी से डी तक ट्रांसिशन हो रहा है ना, इस तरह से ये डी से डी तक ट्रांसिशन होता है ना, इस वजह से कलर आता है। तो डी ट्रांसिशन है कलर का रीजन भी। ठीक है,
बस CF क्रिस्टल ट्रीट थ्योरी CFT की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह को वो नहीं करती है, कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर वगैरह को कंसिडर नहीं करती है। नेक्स्ट आते हैं आपके मेटल कार्बोनल्स। मेटल कार्बोनल्स में जैसे कि आपका Mn2 है, Mn2CO10 है, ये सब मेटल कार्बोनल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर Mn और Mn का बॉन्ड है, इस तरह ये इसके अंदर सिनर्जी बॉन्डिंग होती है। सिनर्जी बॉन्डिंग में आपका जो है पाई और आपका सिग्मा दोनों बॉन्ड्स होते हैं। ये आपके जो है भरे हुए से इसमें खाली में डाल दिए तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, लोन पे डोनेट कर दिया। पाई बॉन्ड कैसे होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फुली फिल डी से एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, ये डी से भरा हुआ है और इसमें एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया तो ये हो गया पाई बॉन्ड। और जिस जो खाली में डाला वो होता है आई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार का मतलब है पाई एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया तो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड बन जाता है, और इसे बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। सिनर्जी बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब है कितना एसोसिएशन हो रहा है स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम के समय। इसे हम MLN से जो है वो डिपिक्ट करते हैं। जैसे M है, कोई भी N टाइप, कितने भी N मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, MLN कॉम्प्लेक्स बन गया इससे, सपोज करो। तो जो आपका ओवरऑल कांस्टेंट होगा स्टेबिलिटी का, वो डिटरमाइन होता है इंडिविजुअल वालों के प्रोडक्ट से। जैसे कि पहला वाला है, इसका K1 क्या हो गया, ML/ML, ML+L, ML2 क्या हो गया, ML2/ML। इस तरीके से अगर हम करते जाएं तो लास्ट में जो Kn वाला होगा वो हो जाएगा MLN/ML n-1 और L, ठीक है। और ये जो आपका Bn आएगा ये होगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हो जाता है सबके ओवरऑल वाला सबके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। बाकी बात में आती है, लास्ट बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। तो नेचर, सेंट्रल एटम का, लिगेंड्स का किस तरह से नेचर है, किलेटिंग इफेक्ट, ये सब अफेक्ट करते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन है अलग अलग, जैसे कि आपकी मेडिसिनल यूज है, जैसे सिस्प्लैटिन है वो आपका कैंसर में ट्रीटमेंट में काम आता है। EDTA के कॉम्प्लेक्स होता है कैल्शियम का, वो आपका काम आता है लेड पॉइजनिंग वगैरह में, ठीक है। ये सब चीजें हैं। उसके बाद आपका पोरफायरिन इनमें, क्लोरोफिल वगैरह में, साइनोकार्बोलामीन जो होता है आपका वो एनीमिया वाले में काम आता है, विटामिन B12 वाला, वाटर की हार्डनेस निकालने में, फोटोग्राफी वगैरह में, ये सब में काम आते हैं। ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये तो हमने बहुत ब्रीफ में बात करी है। अब आ जाता हूँ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, आपको उनके ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सिंपल मेटल आइटम का। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स की अगर बात करी जाए तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में x - 6 = -3, x की वैल्यू हो जाएगी +3। +3 कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ आ रहा है, तो ये और ये तो कट हो जाएंगे। ये वाले में अगर आयरन की निकालेंगे तो x - 6 = -3 है, तो x की वैल्यू जो है वो +3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अगर आपको ये भी नहीं पता था तो आपको पता होना चाहिए आयरन जो होता है वो +2 और +3 में ही एग्जिस्ट करता है, आयरन का भी +6 में एग्जिस्ट करता हुआ देखा है। नेक्स्ट देखो, प्लैटिनम की बात करें तो प्लैटिनम वाले में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये हो गई x, En की कुछ नहीं होती, न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। NO2 की कितनी हो गई, माइनस कितना, वन। क्लोरीन का -1 = +2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +4। तो प्लैटिनम की हो गई +4, +3 और +4 आंसर, ठीक है। इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन आयरन की निकालनी है इसके अंदर। तो आयरन जो होता है ये +3 में Fe+3 है, प्लस उसके बाद क्या है, Fe+3 के साथ अगर इसमें बताऊं, वैसे तो मेरे पास एक ट्रिक है इसको निकालने की जो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के लेक्चर में बता रखी है, आप थ्योरी का लेक्चर देख सकते हो। अभी ट्रिक के लिए टाइम नहीं है, पूरी लिखवाई हुई है वो मैंने, ट्रिक लास्ट में लिखवाई हुई है। कोऑर्डिनेशन का लेक्चर देखना और उसमें बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल एंड में, एंड के 5 मिनट में बताइए, वही ट्रिक है, ठीक है। वो लिखनी आपको याद करनी होती है पूरी। तो अगर Fe+3 में, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Fe अगर +3 में है तो Fe का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, यानी क्या होता है 3d6 4s2, ये होता है। अगर +3 होगा तो ये चला जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, ये D5 हो जाएगा। अब D5 कॉम्प्लेक्स है, D5 है मेरे पास, अगर मेरे पास D5 है तो D5 किस तरीके से होगा, और 6 है यानी ऑक्टाहेड्रल में, D5 ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से भरा जाएगा,
एक तो तरीका है मेरे पास ये भरने का 5, और एक तरीका क्या है मेरे पास भरने का, एक तरीका मेरे पास भरने का ये है 2 3 4 और 5, दो तरीके हैं मेरे पास भरने के, ठीक है। और आपका क्या है इसके अंदर साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, यानी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग एनालिसिस ज्यादा होगा, पेयरिंग हो जाएगी, यानी ये नहीं होगा ये होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से भरा जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से है ना, तो ये 5 किस तरीके से भरे जाएंगे, 4 और 5, यानी ये वाले जो हैं वो खाली हो जाएंगे, ये दोनों खाली हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास ये खाली एस पड़ा होगा, और ये खाली हमारे पास क्या पड़ा होगा, पी पड़ा होगा। तो हमारे को कितने भरने हैं इसमें, साइनाइड 6 भरने हैं। क्या भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 4 क्यों, एस तो सिंगल है ना, 3 4 5 6 इस तरीके से भरा जाएगा। यहीं तो भरे जाएंगे, यहीं तो साइनाइड आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, ये डी है, ये एस है, और ये पी है, यानी ये क्या है 3D है, ये 4S है, और ये 4P है। इसका मतलब क्या है, कहाँ भरे जा रहे हैं, D2 और एक S और 3P, यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन हो गए D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, D2sp3 होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया इसकी पूरी कुंडली। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना होता है, ठीक है, VBT और CFT से इस तरीके से आपको निकालना होता है, ओके। ये पैरा होता है, ये बात भी याद रख, ओके। नेक्स्ट, तो उसका आंसर होगा D2sp3, कहाँ पे है D2sp3। नेक्स्ट देखो, CONH3 ऑल्सो 3 पॉजिटिव, यानी कोबाल्ट जो है वो +3 में है, कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोबाल्ट होता है 27, यानी D7 4s2, D7 4s2 होता है, और कोबाल्ट +3 कर देंगे तो +3 वाला कितना हो जाएगा, D6, D6 1 2 3 D6। और अमोनिया है, क्या होगा अमोनिया के केस में, ये आपको अब पढ़ना पड़ेगा, हम क्या कहते हैं अमोनिया के केस में किस क्या होगा, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3। अमोनिया का डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा कि वीक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। 4 5 6, या तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो सकता था, ये हो सकता था। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है, जो डी होते हैं उसमें ये 1 2 3 4 और 5 6 इस तरीके से बिहेव करता है, दो डी खाली, एक ये खाली, और 3 ये खाली, तो ये D2sp3 बना देता है और डायमैग्नेटिक बना देता है, ठीक है, D2sp3 और डायमैग्नेटिक और एनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझ में आया, नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाने हैं PtCl2 Cl NH3 ऑल्टो एस के, तो PT इस तरीके से है, ये दो में अमोनिया हो गया, दो में Cl हो गया, ये हो गया सिस, और अगर Cl अगर अपोजिट हो जाए और अमोनिया अमोनिया अपोजिट हो जाए तो ये हो गया ट्रांस, सिस और ट्रांस हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिकल। K2PL4 है, ये आपका आयनाइज कैसे होगा जब वाटर में जाएगा, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, ये जाके टूटता नहीं, यानी ये 2 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव, और PtCl4 का कॉम्प्लेक्स पूरा एज इट इज रहेगा पानी के अंदर भी 2 नेगेटिव, इस तरीके से ये टूटेगा पानी के अंदर,
प्रेसिपिटेट बनाएगा कि AgNO3 के संग? नहीं, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जब क्लोरीन फ्री नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट कैसे बनाएगा? AgNO3 के संग क्लोरीन होना चाहिए ना, तभी तो रिएक्ट करने के लिए, तभी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन ये टूटेगा ही नहीं, ये तो क्लोरीन फ्री नहीं है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। नो नो, ठीक है। आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा? PTCl2NH3 होल 4 Br2 और PtBr2। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ ब्रोमीन बाहर है और एक तरफ क्लोरीन बाहर है। कौन सा आइसोमेरिज्म है ये? कैसा आइसोमेरिज्म है ये? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन स्फीयर अलग अलग है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। एक तरफ ब्रोमीन का टेस्ट दे देगा, एक तरफ क्लोरीन का टेस्ट दे देगा। कोई भी टेस्ट बोल दो इनके लिए, ये आप कोई भी टेस्ट बोल सकते हो। ब्रोमीन नेगेटिव का कोई भी टेस्ट होगा तो एक तरफ जो है जैसे सिल्वर का टेस्ट है तो एक तरफ AgBr दे देगा, एक तरफ AgCl दे देगा। तो कोई भी टेस्ट दे सकते हो इनके लिए, केमिकल टेस्ट, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कैंसर में यूज होता है, अभी बताया था सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन, ठीक है। सिस्प्लैटिन क्या होता है? अभी दिखाया था ना, ये होता है सिस्प्लैटिन। लेड में क्या बताया था? कैल्शियम और EDTA का कॉम्प्लेक्स बताया था ना, EDTA का कॉम्प्लेक्स बताया था ना अलॉन्ग विद कैल्शियम। ये लेड का, लेड पॉइजनिंग में काम आता है। नेक्स्ट देखो, जिया ने अप्लाई करी मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों कंपाउंड के अराउंड और उसने कहा कि ये वाला कंपाउंड स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्या एक्सप्लेन करता है इसे? साइनेट्स वीक लिगेंड होता है? बिल्कुल भी नहीं, साइनेट तो बिल्कुल भी वीक नहीं होता, तो पी तो कतई नहीं होगा आंसर, तो ये तो कट। और वो बोल रहा है H2O वीक लिगेंड है? H2O वीक लिगेंड होता है, हाँ होता है H2O वीक लिगेंड। लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे? वो ऐसे कंफर्म करेंगे कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ये अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो यानी ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, तभी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। अगर H2O वीक फील्ड लिगेंड है, साइनाइड तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, तो अगर साइनाइड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, क्योंकि साइनाइड जो है पेयरिंग कर देगा। Fe+2 रहा होगा, तो Fe+2 का मतलब है D6। तो अगर D6 होना है तो ये D6 के अंदर ये पेयरिंग कर देगा, ये 6 पेयर ही हो जाएंगे, क्योंकि साइनाइड स्ट्रांग है तो पेयरिंग करा देगा इनकी। तो ये तो जो है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। S तो बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा D, Q एंड S, क्योंकि हाँ H2O वीक फील्ड लिगेंड होगा और S जो होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला इनर ऑर्बिटल ही बनेगा, ये वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, ये आउटर ऑर्बिटल बनेगा, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इनर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, ये आउटर बनेगा। ओके, ये वाला गलत, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, Q और S सही होगा आपस में। नेक्स्ट देखो, VBT के बेसिस पर बताओ हाइब्रिडाइजेशन शेप, चार्ज और मेटल NiCO कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो Ni जो होता है इसके अंदर 0 में एग्जिस्ट करता है, यानी D8 है ना। Ni D8 4s2 है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये। और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए sp3 होता है और टेट्राहेड्रल होता है। 0 इसका इस तरीके से होता है चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन सॉरी 0 होती है, हाइब्रिडेशन sp3 हो गई, शेप टेट्राहेड्रल हो गई और 0 चार्ज होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कॉपर का होगा, तो कॉपर का भी सेम होगा? हाँ, कॉपर के लिए भी सेम होगा, चार्ज 0 ही होगा, क्योंकि कार्बोनिल का होता ही 0 है, ठीक है। तो sp3 हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि आपका कार्बोनिल है और D8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बोनिल हो गया। और आपका S और आपका 3 p एरो है और आपका S भी भरा हुआ है 2, इस टाइप से है। तो ये वाला एक इधर आ जाएगा और एक ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये एक S खाली हो जाएगा और 3 p खाली हो जाएंगे 4 कार्बोनिल को अकोमोडेट करने के लिए। इसकी S की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना CO, इसलिए एक यहाँ आ जाएगा, एक उधर चला जाएगा, sp3 हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी और आपकी जो है इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है, जबकि NiCO4 Cl4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर होता है। क्यों? टेट्राहेड्रल का अभी तो बता दिया मैंने क्यों होता है, ठीक है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है sp3। ओके, यहाँ पर Ni+2 में है। Ni+2 का मतलब क्या हो गया? D8। D8 और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में D8 बनना है तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड में बनना है, Ni+2, और जबकि इसके पास 4s2 नहीं है, ये S ये रहा और 3 P के ये रहे इसके अंदर। अब क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से यहाँ पेयर कर लेता है, तो अब यहाँ पर एक D खाली हो जाता है। एक D है हमारे पास, प्लस एक S है, और 2 P हो जाते हैं हमारे पास, 4 को अकोमोडेट करने के लिए। एक साइनाइड यहाँ आएगा, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, और एक साइनाइड यहाँ जाता है, तो इसमें DsP2, ये DsP2 हो जाता है, ठीक है। और DsP2 होने की वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, साथ ही में कैसा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ ये हो जाता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्लस स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 हो गई और यहाँ पे 0, आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, सोडियम फेरोसाइनाइड एंटी केकिंग एजेंट की तरह यूज होता है। मॉइस्चर में आने की वजह से स्टेबल सॉल्ट जो है उसमें क्लम्पिंग हो जाती है, यानी गांठें बन जाती हैं। एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड, इससे बच सकते हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं, बताओ साइनाइड पॉइजनस होता है, स्टिल पोटेशियम फेरोसाइनाइड यूज हो रहा है, क्यों? पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्यों यूज हो रहा है? क्यों? साइनाइड तो पॉइजनस होता है, आपको पता, साइनाइड की पॉइजनिंग के बारे में तो पता ही है। साइनाइड की पॉइजनिंग कितनी खतरनाक होती है, साइनाइड अवेलेबल भी नहीं होता, बहुत कर रहा जहर है। तभी क्यों यूज होता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये टूटेगा नहीं, कॉम्प्लेक्स है ये साइनाइड का, समझ में आया? ये टूटता नहीं है। ओके, इसलिए साइनाइड पॉइजनस होता है, तभी पोटेशियम फेरोसाइनाइड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, क्यों? क्योंकि साइनाइड जो होता है ये FeCN6 4 नेगेटिव होगा, तो Fe+2 में होगा, Fe+2 है तो D6 होगा, और D6 में साइनाइड की जो है वो लो स्पिन हो जाएगी, साइनाइड पेयरिंग करा देगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, सारे पेयर्ड हो जाएंगे D6 में, इस तरीके से, ऐसे। तो ये वाला ये होगा, जबकि इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका +2 तो होगा, लेकिन ये वीक फील्ड रहेगा, वीक फील्ड रहेगा तो ये यहाँ पर जो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन मतलब ज्यादा एनर्जी, जिस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे कम होगी वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी कम होगी क्योंकि हाई स्पिन नहीं होगा, लो स्पिन होगा इसके केस में। ये कैसा है, ये लो स्पिन है, लो स्पिन की वजह से एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लास्ट पार्ट, हाइड्रेट आइसोमर क्या होगा, FeH2OCl6 का, तो हाइड्रेट बनाना है अगर इसका, तो इसका हाइड्रेट कैसे बनेगा? एक अंदर रख लो, बाकी बाहर, हाँ, एक अंदर से बाहर निकाल दो, ये हो गया इसका हाइड्रेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है एक मोल ही प्रेसिपिटेट चाहिए एजिन, यानी इसके अंदर हमारे को Cl भी बाहर निकालना पड़ेगा, वरना Cl को मैं अंदर ही रखता। नेक्स्ट देखो, FDA ने इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट को अप्रूव किया है लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए। अभी मैंने बताया तुम्हारे को कि कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है EDTA के साथ, तो लेड पॉइजनिंग में काम आता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, EDTA है ये, और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है इसका, और ये 6 इस तरह से 6 लिगेंड से ये बाउंड हो जाता है ना, किलेट बना लेता है, रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स। किस टाइप का EDTA, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? तो अभी मैंने बोला है ना, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, रिंग रिंग बना रहा है ना, किलेटिंग है। EDTA क्यों यूज होता है? क्योंकि EDTA जो होता है लेड के संग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो अगर लेड के संग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो उस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकाल लेगा उसे, वो फिर लेड जो है वो नॉन टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। EDTA कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टेहेड। कैसी ज्योमेट्री? ऑक्टेहेड।
कोऑर्डिनेशन समझ 6 और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टेट। ओके नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं ये देखो, आधे लोगों की तो हवाई टाइट हो जाएगी इस क्वेश्चन को देख के। क्या कह रहा है, वाटर पोल्यूशन टॉक्सिक एलिमेंट से होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। स्टडी करी मैंने केलेट लिगेंड्स की ऑन हैवी मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग क्रेडिटिंग लिगेंड माने गए, ईडीटीए था, ऑक्सैलिक एसिड था, सिट्रिक एसिड था, इन सबको टेस्ट किया गया पीएच के बेसिस पे। रिमूवल मेटल का किया गया डिपेंडिंग ऑन द एक्सट्रैक्टिंग एजेंट एंड रेज विद द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ केलेटिंग एजेंट्स, ठीक है जी। अब ये देखो रिमूवल का रेट बता रहा है, तो सबसे ज्यादा रिमूवल हो रहा है किससे, ऑक्सैलिक एसिड, और सबसे कम हो रहा है किससे, ईडीटीए से हो रहा है पीएच के बेसिस पे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, केलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, केलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो मेटल के संग बाइंड करके कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं जिन्हें केलेट्स कहते हैं, रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिन्हें केलेट्स कहते हैं, ठीक है। दो हैवी मेटल जो कि टॉक्सिक माने जाते हैं तो कौन से हो गए, मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये सब हो गए आपके टॉक्सिक मेटल्स, ये लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये सब आपके कैसे हैं, टॉक्सिक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि केलेटिंग एजेंट्स का ऑर्डर बताने विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटल्स। सबसे पहले कौन सा था, दिख रहा है ना, ऑक्सैलिक एसिड था, देन क्या था, देन आपका सिट्रिक एसिड था, देन क्या था, देन आपका ईडीटीए था, यही ऑर्डर था आपका। देखो ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और देन ईडीटीए, ये ऑर्डर था आपका परसेंटेज रिमूवल का, साफ साफ दिख रहा है ये तो। ग्राफ बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है क्वेश्चन नहीं आएगा हमें, आधे लोग तो ग्राफ से होपलेस हो जाएंगे, ग्राफ से होपलेस करने के लिए दिया गया है। ईडीटीए का स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है ना, देखो ये रहा ईडीटीए का स्ट्रक्चर, बस मेटल हटा देना इसमें से, ईडीटीए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बना के दिखाऊं, तो देखो ईडीटीए का स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये होगी ईडीटीए का स्ट्रक्चर, ये जो ये है ना, ये CH2 है, एन CH2COH 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 और बीच में CH2CH2, ये हो गया ईडीटीए का स्ट्रक्चर। तो यही तो है इसके अंदर, ये एन और बीच में CH2CH2 और यहाँ COOH, यहाँ COOH, फिर यहाँ CH2COH, यहाँ CH2COH, चार जगह CH2COH लगा होता है, बस यही तो है ईडीटीए का स्ट्रक्चर। आधे लोग तो पर होपलेस हो जाएंगे देख के। नेक्स्ट देखो, कौन सा मेन फैक्टर होता है जो कि रिमूवल ऑफ मेटल्स पर डिपेंड करता है, उनका कंटामिनेटर वेट पर, क्या डिपेंड करता है बताओ। इस पर डिपेंड करता है पीएच पे, और इस पर डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड करता है पीएच पे नहीं, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या किसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एजेंट, जिससे हम रिमूव कर रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन बेसिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, गारंटी है तुम्हारे को में, अगर तुम इस क्लास को देख रहे हो ना, गारंटी है, कोई तुम्हें यूट्यूब पर फ्री में इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए इस तरह का कंटेंट दे रहा हो, ऐसे गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, पढ़ लो, बता रहा हूँ मैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या कौन सा होगा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, जिसका के ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, डायमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम
ये तो न्यूट्रल होता है, क्लोरीन का रहेगा, क्लोरीन का कितना है, 2 है तो 2, क्लोरीन 2। नेक्स्ट देखो कौन सा आइसोमेरिज्म रहेगा इन दोनों के बीच में, तो देखो यहाँ एक तरफ H2O है और एक तरफ Cl3 है, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा इनके बीच में, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है जबकि इसका 1.74 है, क्यों, क्योंकि अगर H2O को देखें तो H2O वीक फील्ड लिगेंड है, Fe+3 है यानी D5 कॉम्प्लेक्स है Fe। अगर D5 की बात करी जाए, Fe के D5 की बात करी जाए तो Fe का D5 इस तरीके का रहेगा वीक फील्ड में, 1 2 3 4 5, 5 एन पेड है, तो 5 एन पेड है तो रूट n+2 अगर लगाएंगे तो 5 × 5+2 7, रूट 35 आएगा इसका आंसर, रूट 35, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.92 के आसपास ही आता है। जबकि Fe(CN6) नेगेटिव है, ये कैसा है, साइनाइड इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो अगर भले ही यहाँ पे Fe+3 है और D5 है, लेकिन इसका D5 कैसा होगा, इसके D5 के अंदर इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये D5 ऐसा होगा, सिर्फ इसमें एक अनपेड रह जाएगा, इसलिए 1.74 के आसपास आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 × 1+2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.√3, रूट 3 कितना आता है 1.732 के आसपास आता है ना, 1.732 के आसपास आएगा, तो ये रहा 1.74 बोर मैग्नेट, ठीक है। तो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ओके, डिपेंड करेगा ये। हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, फिर की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी sp3d2, ये वीक वाले की, ओके। नेक्स्ट देखो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, Cl3 है और Cl2H2O है, कौन सा आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट, सिंपल। सॉल्वेट में वाटर की प्रपोर्शन अलग अलग होती है, अंदर और बाहर। नेक्स्ट देखो CrCl3.6H2O है, इसमें Ag NO3 डाला तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यानी बाहर जो है वो स्पेयर के, इसके बाहर Cl2 रहा होगा, मुझे ये मालूम है, और बाहर Cl2 रहा होगा, और पर मोल ऑफ द कंपाउंड अगर Cl2 है तो Cl2 अकेला तो नहीं आएगा, इसमें .6H2O है तो इसके अंदर कुछ H2O भी बाहर आए होंगे, यानी एक H2O इसके संग बाहर आया होगा इसके साथ, जब हाइड्रेट हो रहा है तो एक H2O बाहर भी तो आना पड़ेगा उसे, तो अंदर बच क्या गया CrH2O होल 5, और Cl 2 बाहर आ गए तो एक अंदर बच जाएगा Cl, ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा, और पेंटा एक्वा के बाद आ जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो के बाद क्या आ जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम कितना, एक यहाँ 2 यहाँ, क्रोमियम 3, और उसके बाद क्लोराइड, और एक सिंगल H2O है तो मोनोहाइड्रेट। फिर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लिखते हैं ना, ऐसे मोनोहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका IUPAC। ये ग्रीन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे Ni जो होगा वो +2 में है, ये D8 होगा, D8 वो भी वीक फील्ड वाला, अगर D8 वीक फील्ड वाला है तो ये किस तरीके से भरा जाएगा, अगर वीक फील्ड वाला है तो ये ऐसे भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे भरा जाएगा, इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड होने की वजह से इसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा, इस वजह से इसमें कलर आएगा, तो ये ग्रीन कलर का होगा। NiCN4 2 नेगेटिव रहे तो यहाँ निकल 2 पॉजिटिव है D8 वाला, लेकिन ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या क्या होगा, कैसे रहेगा, Ni+2 है ना, अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो वैसे ऐसे देख सकते हो इसे,
और यहाँ 7 8 इस तरीके से निकल टू इस तरह से नो अनपेयर्ड, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। अगर ऊपर जाके दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो कि ये यहीं पर 2 पेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। अरे गलती हो गई, अरे एक गलती हो गई, मैंने रियलाइज नहीं किया। आई डोंट थिंक आपने भी रियलाइज किया है या नहीं। निकल तो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है ना, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, तो यहाँ नीचे 2 होंगे, ऊपर 3 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक है। अनपेयर्ड होगा यहाँ पर भी देखो, मैंने कहीं पर एक गलत बता दिया था शायद। यहाँ देखना, साइनाइड का तो हमारा ऐसा होगा ना, हाँ देखो निकल साइनाइड, ये मैंने आपको ऐसा बता दिया ना। चलो यहाँ तो सही बताया है, हाँ यहाँ तो ठीक है, ये तो सही बताया है। चलो यहाँ भी सही बताया, हाँ मैंने आपको ऊपर से नहीं बताया ना, ऊपर जाके। तो 3 और 2 में इसकी स्प्लिटिंग जो है वो 2 और 3 और 2 में नहीं, 2 और 3 में होती है। टेट्राहेड्रल है ना। चलो ठीक, इतना ही है ना। हाँ, तो यहाँ सब पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होने की वजह से कैसा होगा, ये कलरलेस होगा, क्योंकि कोई डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी 2 फॉर्म है। ए फॉर्म AgNO3 के संग रिएक्ट करती है और व्हाइट प्रेसिपिटेट देती है, दूसरी फॉर्म पेल येलो देती है। यानी एक फॉर्म में ब्रोमीन बाहर होगा, एक फॉर्म में Cl दे रहा होगा, सिंपल। तो पहली फॉर्म कैसी रही होगी, पहली फॉर्म में एक ब्रोमीन का बाहर रहा होगा, सॉरी ब्रोमीन कह रहा हूँ, क्लोरीन का बाहर रहा होगा, BrCl ऐसे होगा, और एक Cl बाहर रहा होगा, ये ए फॉर्म हो गई जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगी। और दूसरी फॉर्म में ब्रोमीन बाहर रहेगा, ये ये बी फॉर्म हो गई, इसमें ब्रोमीन बाहर रहेगा, ठीक है। समझ में आई। तो पहली फॉर्म कैसी हो गई, D2sp3 वाली हो गई, और बी वाली भी कैसी हो गई, D2sp3 हो गई, ओके। समझ में आया, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन D5 की क्या होगी। अगर D5 है, अगर ये ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, तो D5 इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे यहाँ सब खुला रहेगा ऐसे। दोनों ही पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G3 Tg2, इसकी हो जाएगी T2G5 Tgz, ठीक है। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर पेयरिंग होगी तो इस तरीके से नीचे पेयरिंग हो जाएगी, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ओके। विद दिस वी एंड द चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, PDF इस तरह से कलेक्ट कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। Thank you very much. Goodbye. Take care. Have a great day and a great month ahead. Mr. Luck for your exams. Thank you very much. Goodbye and take care. Meet you all in the next.